Hello and welcome students. This is the lecture number 6 of trigonometry and we are solving the exercise 2.2. तो इसके हमने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 and the given question is find the acute angle theta if 2 cos square theta equal to 3 sin theta. So my given question is 2 cos square theta is equal to 3 sin theta. तो मैं इस इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करता हूँ. cos square theta is 1 minus sin square theta is equal to 3 sin theta. So I have 2 minus 2 sin square theta is equal to 3 sin theta. And this equation becomes 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 equal to 0. This is the quadratic equation in sin theta. तो ये quadratic equation factorization से solve होगा. 2 sin square theta plus 4 sin theta minus sin theta is 3 sin theta minus 2 equal to 0. Quadratic equation by factorization. First two terms, in first two terms we can take common 2 sin theta. So it becomes sin theta plus 2 minus common and another bracket is also sin theta plus 2 equal to 0. Okay. Now again we can take sin theta plus 2 common. तो मेरा दूसरा ब्रैकेट बनेगा 2 sin theta minus 1 equal to 0. So now this term is 0 if sin theta plus 2 equal to 0, यानी sin theta की वैल्यू -2 होगी. 2 sin theta minus 1 equal to 0 होगा तो sin theta क्या बनेगा 1/2. ओके. लेकिन sin थीटा तो -2 हो ही नहीं सकता. sin थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1. So sin theta equal to -2. This is not possible. So here is the only solution that sin theta is equal to 1/2 and therefore theta is 30 degree, that is pi/6. Okay. Now see the question number 8. Question number 8 और मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन है. Find the acute angle theta such that find the acute angle theta such that 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. Okay. So this is my question number 8. जैसे कि हमने 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें सेम टाइप से ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. इसमें भी ये इक्वेशन हमें सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए. तो मेरा इक्वेशन है 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. तो इसमें मैं sec और tan के आइडेंटिटी यूज करूंगा. sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. तो tan square theta को मैं क्या लिख सकता हूँ
sec square theta minus 1 plus a3 equal to 9 sec theta. So by solving this equation, that is multiplying by 5 to the bracket, 5 sec square theta minus 5 plus 3 equal to 9 sec theta, और यहाँ से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 5 sec square theta माइनस 9 sec theta माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो मुझे चाहिए प्रोडक्ट माइनस 10, तो 5 sec square theta माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 9 sec थीटा को लिखता हूँ मैं माइनस 10 sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे कॉमन मिलेगा 5 sec थीटा. तो ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए sec थीटा माइनस 2 प्लस, और यहाँ पे भी होगा sec थीटा माइनस 2. तो फिर से मैं sec थीटा माइनस 2 कॉमन लेता हूँ. sec थीटा माइनस 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो दूसरे ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 5 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से sec थीटा माइनस 2 अगर 0 होगा तो sec थीटा 2 होगा, और 5 sec थीटा प्लस 1 अगर 0 होगा तो sec थीटा कितना होगा, माइनस 1/5. अब देखिए sec थीटा की रेंज, sec थीटा और cosec थीटा जो है मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में, सॉरी इन द फॉर्मूलाज, that is the domain and range of trigonometric function, sec theta is always 1 and greater than 1, minus 1 and less than minus 1. So sec theta हमेशा 1 से बड़ा होता है, minus 1 से छोटा होता है. So sec theta minus 1/5, that lies between minus 1 to 0. So this is not possible. So only sec theta equal to 2 is possible. तो यहाँ से मेरा cos थीटा बनेगा 1/2, और अगर cos थीटा 1/2 है तो बोलिए थीटा क्या होगा, 60 डिग्री, यानी π/3. So this is the question number 8. Now see the question number 9. Next क्वेश्चन नंबर 9. तो मेरा अगला क्वेश्चन है 9. फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा such that 3 cos theta plus 4 sin theta इक्वल टू 4. तो यहाँ से मुझे साइन थीटा फाइंड आउट करने का है. तो मेरा गिवन इक्वेशन है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4. ओके, तो मुझे इसमें साइन थीटा फाइंड आउट करने का, तो इक्वेशन मुझे साइन में चाहिए. तो पहले मैं इस टर्म को ट्रांसफ़र करता हूँ, 4 sin थीटा को ट्रांसफ़र करता हूँ, 4 माइनस 4 sin थीटा, एंड 3 cos थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 minus sin theta. Now squaring on both sides. तो 3 cos थीटा का स्क्वायर होगा 9 cos स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. ओके, तो यहाँ से साइन की वैल्यू चाहिए तो आइडेंटिटी यूज करूँगा. कॉस के लिए कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 32.
साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर की टर्म यानी साइन स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करेंगे तो ये 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस 32 साइन थीटा प्लस 16 माइनस 9 कितना होगा 7। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने का है। सो 25 इंटू 7, तो इसके 25 प्लस 7 32 ही आते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ दिस विल बी 25 साइन स्क्वायर थीटा 32 साइन थीटा को लिखता हूँ मैं 25 माइनस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर इज नो न्यू कंसेप्ट, ओनली सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन निकलता है, यहाँ से कॉमन निकलता है 25 साइन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या होगा साइन थीटा माइनस 1 टेकिंग माइनस 7 कॉमन, दूसरा ब्रैकेट भी होगा साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0, सॉरी साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो अब फिर से साइन थीटा माइनस 1 को हम कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा माइनस 1 इज कॉमन, तो मेरा दूसरा ब्रैकेट मिलेगा 25 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो साइन थीटा 1 होगा, दूसरा ब्रैकेट 0 है तो साइन थीटा 7/25 होगा। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। साइन थीटा कैसा होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. So this is also possible and this is also possible. So this is the values of sin theta for this quadratic equation. This was the problem number 9. Okay, now see next 10. तो मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन है, if cosec theta plus cot theta is equal to 5, then evaluate sec theta. So I have to find the sec theta by solving this equation. Okay, so मेरा given equation है cosec theta plus cot theta equal to 5. इसको मैं sin cos में कन्वर्ट करता हूँ। So you know very well, सबको पता है cosec theta is 1/sin theta and cot theta क्या होता है cos theta by sin theta is equal to 5. ओके, तो अब ये इक्वेशन मिलेगा 1 प्लस cos theta इज इक्वल टू sin theta से मल्टीप्लाई करो 5 sin theta. नाउ बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस में इक्वेशन मिलेगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके मुझे मिलेगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब 25 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे
25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा? 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये बन जाएगा 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos theta minus 24 equal to 0. Now I will divide this equation by 2. तो मुझे मिलेगा 13 cos square theta plus cos theta minus 12 equal to 0. फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देयर इज फैक्टराइजेशन से हम ये सॉल्व कर सकते हैं. तो 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आना चाहिए. तो इसके लिए मैं लिखता हूँ प्लस 13 cos थीटा माइनस 12 cos थीटा, यानी cos थीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट एडजस्ट हो चुका है, माइनस 12 इक्वल टू 0. नाउ आई विल टेक 13 cos थीटा कॉमन. ओके. तो मैंने अगर 13 cos थीटा कॉमन लिया है तो मुझे मिलेगा cos थीटा प्लस 1 माइनस 12 कॉमन cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से फिर से कॉमन क्या निकलता है? cos थीटा प्लस 1. तो मेरा दूसरा ब्रैकेट आएगा 13 cos थीटा minus 12 equal to 0. तो if my first bracket is 0 तो यहाँ से cos थीटा मिलेगा -1. ओके. और cos थीटा मिलेगा 12/13. सो देखेंगे cos की रेंज क्या है, -1 to 1. ये वैल्यू पॉसिबल है cos के लिए. The both values are in between -1 to 1. Cos theta is less than or equal to 1, greater than or equal to -1. तो both values are possible, but देखिए स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज समथिंग डिफरेंट. अगर यहाँ पे कॉस्ट, अगर ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि दिए हुए वैल्यू से जो हमारा आंसर है उससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरा cos थीटा -1 आता है, cos थीटा अगर -1 है तो sin थीटा 0 होगा. cos थीटा अगर -1 है, cos थीटा अगर -1 है तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा. तो 5 sin थीटा 0 हो जाएगा. तो sin थीटा 0 बनेगा. और अगर sin थीटा 0 है तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि कोसेक एंड कॉट आर नॉट डिफाइंड एट, डिनोमिनेटर 0 है तो ये डिफाइन नहीं होगा. 1/sin थीटा कोसेक बाय sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डिफाइंड, बट राइट हैंड साइड में 5 है, RHS डिफाइन होती है. तो ये इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 0 दैट इज cos थीटा इक्वल टू -1 से सेटिस्फाई नहीं होगा. So this is not the solution of this question or equation, and the right answer is cos theta equal to 12/13. लेकिन मुझे पूछा है sec theta, so this is 13/12. This is the correct answer. Okay. Now see the question number next. Question number 11. और यहाँ से मुझे दिया है इफ cot थीटा की वैल्यू है 3/4 एंड थीटा इज greater than pi less than 3/2, then find the value of 4 cosec theta plus
5 cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे cot थीटा इज, cot थीटा कितना दिया है 3/4, और यहाँ से देखिए थीटा इज लेस देन 3π/2, यानी थीटा इज लेस देन 270 ग्रेटर देन पाई 180। तो इस तरह से थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, लेस देन 270 ग्रेटर देन 180, तो ए बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है, हमको ध्यान में रखने का है। तो थर्ड में कोसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, ओनली टैन एंड कॉट इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉट से मैं कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3 नंबर के आइडेंटिटी, 1 प्लस 9/16 25/16। ओके, तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या मिलेगा, कोसेक थीटा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5/4। लेकिन मेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, थर्ड। थर्ड में कोसेक नेगेटिव होता है, तो मैं डायरेक्टली कोसेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव लिखता हूँ -5/4। ओके, तो यहाँ से मिल गया मुझे कोसेक थीटा। अब मुझे फाइंड आउट करने का है कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा के लिए मैं साइन थीटा लिख लेता हूँ, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, -4/5, and I have cos theta is equal to, okay, cos theta is equal to, ऐसा भी कर सकते हैं, एक काम करेंगे, cot theta is cos theta by sin theta। तो यहाँ से मेरा cos थीटा क्या होगा, cot थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। cot थीटा इंटू cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। ओके, तो देखिए मेरा cot थीटा कितना है 3/4, cot थीटा कितना है 3/4, साइन थीटा कितना है -4/5। तो इस तरह से मुझे cos थीटा की भी वैल्यू मिल गई, 4 कैंसल, -3/5। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करने का है 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा। 4 कोसेक थीटा, 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरा कोसेक थीटा कितना आया था -5/4। ओके, प्लस 5 इंटू कॉस थीटा कितना है मेरा -3/5। ओके, तो ये हो जाएगा -5 - 3, तो इसका आंसर आएगा -8। -8 is the correct answer, and this was the question number 11. Now see the question number 12. Question number 12. Okay, तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, find the Cartesian coordinates of points whose polar coordinates
polar coordinates are 390 degree and second point is 180 degree। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट्स के क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर थीटा। सो मैंने क्लास में आपको बताया था रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये मेरा जो पहला पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट से 390 डिग्री। तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ आर थीटा से, तो मेरा आर बन जाएगा 3, थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। तो क्या रिलेशन था? अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के तो फॉर्मूला बोलो, x इक्वल टू व्हाट? आर कॉस थीटा, y इक्वल टू व्हाट? आर साइन थीटा। बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरा r कितना है? 3 इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 तो 0 हो जाता है, 3 इंटू साइन 90, साइन 91 यानी 3। तो मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी मेरा आंसर है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। सो दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 3, 90 degree. By the same method we will solve the second, and second point is 1, 180 degree. Second point is 1, 180 degree. तो ए बी है पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज आर कॉमा थीटा। ओके, तो मेरा आर कितना है बच्चों? 1, थीटा कितना है? 180 डिग्री। फिर से वही फॉर्मूले, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो आर कितना है? 1 इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 कितना होता है? -1। और y का फॉर्मूला क्या है? y कोऑर्डिनेट का आर साइन थीटा। तो आर कितना है मेरा? 1 इंटू साइन थीटा कितना है? 180, साइन ऑफ 180 0। तो इस तरह से मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1, 0 आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 1, 180 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए थे एंड वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड द प्रॉब्लम नंबर 13 इसका अपोजिट है, उसमें हमें कार्टेशियन दिए होंगे और हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के। तो क्वेश्चन है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are। तो फर्स्ट पॉइंट है 5, 5, सेकंड पॉइंट है 1, √3, मेरा थर्ड पॉइंट है -1, -1, एंड माय फोर्थ पॉइंट इज -√3, 1। ओके, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स से, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से मुझे इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज 5, 5। अब ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो दिस इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे x बन गया 5, y बन गया 5। तो जैसे कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, आई हैव गिवन x, y, और मुझे फाइंड आउट करने का है क्या?
आर कॉमा थीटा, ये फाइंड आउट करने का। तो आर के लिए फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला टू फाइंड आर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज रूट ऑफ 25 प्लस 25, तो ये बन गया 5√2। अब थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? tan थीटा क्या होता है? y बाय एक्स। तो y कितना है? 5, x कितना है? 5। ओके, सो y बाय एक्स से मेरा tan थीटा कितना बना? 1। तो यहाँ से मैं थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है वो देखना जरूरी है। 5,5, दिस पॉइंट लाइज इन विच फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल थीटा कितना होगा? 45 डिग्री यानी पाई बाय 4। तो मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा होते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या बनेंगे? r कितना है मेरा? 5√2। थीटा कितना है? पाई बाय 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज 1,√3। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,√3। ओके, 1,√3। तो ए है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y। तो यहाँ से मेरा x है 1, y है √3। अब मुझे फाइंड आउट करने का है r। तो r का फार्मूला बोलो। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो ये बन जाएगा 2। अब फिर से tan थीटा का फॉर्मूला y बाय एक्स। tan थीटा क्या है? y बाय एक्स। ओके, तो y कितना है मेरा? √3, x कितना है? 1 इक्वल टू √3। तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करने का है थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट देखो, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी पाई बाय 3। तो मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r कॉमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r कॉमा थीटा। तो मेरा r कितना है बच्चों? 2। और थीटा कितना है? पाई बाय 3। These are the polar coordinates of the given point. And the third point in the question is -1, -1. Third point is -1, -1. These are the Cartesian coordinates x, y. तो मेरा x है -1, y भी -1। r क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 + 1, r कितना बना? √2। अब मुझे लिखने का है tan थीटा। थीटा फाइंड आउट करने के लिए y बाय एक्स। y इज -1, x इज -1। tan थीटा कितना बना? 1। तो मेरा थीटा कितना होगा? थीटा 45 नहीं होगा, क्योंकि -1, -1, दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। -1, -1, this point lies in third quadrant। तो ये मेरा पॉइंट है -1, -1। तो आई हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। तो tan थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल कितना है? 45। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल कितना होगा? 45। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालने का है तो मुझे ये 180 प्लस, ये पूरा एंगल मिलेगा 180 + 45। क्वाड्रेंट देख के आपको एंगल थीटा बोलने का है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 225 डिग्री। तो 225 यानी कितने रेडियन होते हैं? 5 पाई बाय 4। ओके, थीटा मिल गया, r मिल गया है। तो r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स r कितना है मेरा? √2। और थीटा कितना है?
5 pi/4. So these are the polar coordinates of the given point. Okay, and the last point in this is minus root 3 comma 1. Fourth, minus root 3 comma 1, minus root 3 comma 1. तो these are the Cartesian coordinates. तो मेरा x कितना है माइनस रूट 3, y कितना है 1. फिर से वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम, r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये बन गया 3 + 1 इक्वल 2. ओके, तो r बन गया 2. अब फाइंड आउट करने का है थीटा. उसके लिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या है y/x. तो y कितना है 1, x कितना है माइनस रूट 3. तो ये माइनस 1/√3 बन जाएगा. तो थीटा कितना हुआ, तो देखिए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, माइनस रूट 3 कॉमा 1. दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, तो ये मेरा पॉइंट है माइनस रूट 3 कॉमा 1 और ये मुझे थीटा फाइंड आउट करने का. तो ये थीटा कितना होगा 180 माइनस 1/√3. 1/√3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कितना एंगल है 30. तो 180 से माइनस कर देंगे. तो 180 माइनस 30 बनेगा 150. 150 के रेडियन कितने हो गए 5π/6. ओके, तो मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए हैं एंड माय पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r कॉमा थीटा. तो यहाँ से मेरा r कितना है बच्चों 2 और थीटा कितना है 5π/6. So these are the polar coordinates of the given point and this was the question number 13. Now see the next problem, question number 14. So in this question number 14, find the value of first sine of 19π/3, second cos of 1140, third cot 25π/3. ओके, तो यहाँ से पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम यूज करके इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो साइन का पीरियड क्या होता है बच्चों 2π. तो साइन ऑफ, अब इसको लिखेंगे हम 18π. 19π को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18π + π/3. 19π/3 को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है. ओके, नाउ हियर इसको मैं अब ऐसा लिखता हूँ साइन ऑफ, इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 6π + π/3. 6π + π/3. 19π को मैंने लिखा है 18π + π. सेपरेट करो 18π/3, 6π + π/3 बन जाएगा. ओके ओके, तो अब ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 × 2π + π/3. तो 2π इज द पीरियड ऑफ साइन. तो 3 × 2π इज मल्टीपल ऑफ 2π. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ π/3. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 19π/3 एंड π/3 का डिफरेंस कितने का है 6π का.
तो ये को टर्मिनल एंगल्स है, तो को टर्मिनल एंगल्स हैव द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो साइन 60 कितना होता है, √3/2। ओके, तो नेक्स्ट है मेरा कॉस ऑफ 1140, कॉस ऑफ 1140। तो इस 1140 को मैं लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 360 आना चाहिए, तो 1080 प्लस 60, 1080 प्लस 60 कितना होगा, 1140। ओके, अब एक कॉस ऑफ ये होगा 3 टाइम्स 360 प्लस 60, तो ये 3 टाइम्स यानी कि 1140 और ये 60 डिग्री का एंगल को टर्मिनल एंगल्स है, क्योंकि इनका डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 360। तो को टर्मिनल एंगल्स हैव द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या हम ऐसा कह सकते हैं कॉस का भी पीरियड 2π का होता है, तो आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π ऐसे 3 टाइम 2π का इंटरवल के बाद सेम वैल्यू मिलेगी, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 60, and you know very well cos 60 is 1/2. Okay, see the third। तो थर्ड में मुझे क्या पूछा है, cot 25/3। ओके, cot 25/3, 25π/3। तो इसको भी मैं ऐसा एडजस्ट करता हूँ 24π प्लस π/3। ये जो एंगल इसको इस तरह से स्प्लिट करोगे उसको नीचे हुए नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ए बन जाएगा 8π प्लस π/3। अब 8π प्लस π/3 जो होगा तो कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई का पीरियड होता है कॉट का, tan और कॉट का पीरियड, तो ये 8π के बाद में भी सेम वैल्यू रिपीट करेगा, so it will be equal to cot π/3 and cot 60 is 1/3. Okay, so this is the question number 14. Now we will see the next question number 15. अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे दिया है 15 का फर्स्ट एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टाइम इज ओवर। 15 का फर्स्ट जो है उसमें दिया है मुझे फर्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर a is equal to 1 by sin square a minus sin a raised to 4. तो आई हैव टू प्रूव दिस। अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, इसकी LHS देखो बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस, अब मैं 1/tan स्क्वायर, 1/tan क्या होता है कॉट, तो 1/tan स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ओके, सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ए हो गया sec स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, वो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होगा cosec स्क्वायर ए, तो ए बनेगा 1 बाय cos स्क्वायर ए बनेगा 1 बाय sin square a, cosec is the reciprocal of sin, sec is the reciprocal of cos। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो a बनेगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a
into sine squaring. So like this will be equal to sine square a plus cos square a 1 upon. now I have to prove sin square a माइनस साइन ए रेस टू 4, तो इस cos square a को लिखता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू दिस साइन स्क्वायर. ओके, cos square a इज 1 माइनस साइन स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से मुझे राइट हैंड साइड मिल जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा साइन ए रेस टू 4. सो दिस इज द RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन. आई हैव प्रूव्ड दिस. तो देखो बच्चों, अब तक हमने सॉल्व किए प्रॉब्लम नंबर 15 एंड दिस वाज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. और आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से आप लेक्चर रिपीट करके देखिए, और कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 15 के सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे. इसमें बहुत सारे प्रूव दैट के प्रॉब्लम्स है, तो आइडेंटिटीज एंड रिलेशंस भी यूज़ होगी. तो आप भी प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले लर्न करिए, फार्मूला बुक बनाइए, तभी आप भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम फास्टली सॉल्व कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी. ओके, so okay students, now we will meet in the next lecture of trigonometry, that is lecture number 7. Okay, goodbye.